مولانا آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھے، کن کے ساتھ بیٹھے؟ ان کے ساتھ بٹانا چاہتے ہیں جو بچوں کی طرح باری لے کے بھاگ جاتے ہیں کہ دوبارہ بیٹنگ نہ دینا پڑے۔ یہ ان کے رویے، انہوں نے پاکستان سنوارنے پہلے برباد کر کے دے گئے ہیں پاکستان کو۔ آپ نے صحیح کہا کہ معاملے یہاں پہ طے ہونے چاہیے، یہ وہاں پہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے جیل سے بندے لانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے۔ یہ پہلے 60 ارب کی کرپشن کا دھونا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ پہلے اپنی ناجائز اولادوں کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے پاکستان کے لیے۔ انہیں اپنی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے سب سے پہلے عمران خان، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے، اور شرم کرنی چاہیے۔ جی طاہر صاحب کا مائک کھولیں، گورنمنٹ کی طرف سے جواب تو آئے گا۔ جتنی توجہ سے اور خاموشی سے بات سنی، کچھ تھوڑا ظرف اور دل بڑا کریں۔ ادھر سے بات، سر میں عرض کرتا ہوں، ایک ادھر سے بولیں ایک ادھر سے بولتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں 2 منٹ یا 4 منٹ، میں کوئی آدھے گھنٹے کی بات نہیں کروں گا۔ میں کچھ وہ وضاحتیں ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کرنا، اور میں اپنے دوستوں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جتنے تحمل سے، جتنے آرام سے انہوں نے آج مولانا کی باتیں سنی ہیں۔ اب سر یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کو، یہ ظرف ہے سر ان کا، یہ ان کا ظرف ہے، یہ ان کی سیاسی سوچ ہے، یہ سننا نہیں چاہتے۔ مولانا آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھے، کن کے ساتھ بیٹھے؟ ان کے ساتھ بٹانا چاہتے ہیں جو بچوں کی طرح باری لے کے بھاگ جاتے ہیں کہ دوبارہ بیٹنگ نہ دینا پڑے۔ یہ ان کے رویے، انہوں نے پاکستان سنوارنے پہلے برباد کر کے دے گئے ہیں پاکستان کو۔ آپ نے صحیح کہا کہ معاملے یہاں پہ طے ہونے چاہیے، یہ وہاں پہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے جیل سے بندے لانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے۔ یہ پہلے 60 ارب کی کرپشن کا دھونا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ پہلے اپنی ناجائز اولادوں کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے ہمارے ساتھ۔ یہ پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوانا چاہتے ہیں، یہ پھر بیٹھیں گے پاکستان کے لیے۔ انہیں اپنی ذات سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے سب سے پہلے عمران خان، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے، اور شرم کرنی چاہیے۔ کورم کے پیچھے چھپنے پہ بھی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ میں یہ حوصلہ اور ظرف نہیں ہے۔ کاش آپ ہمارے مدبرین کو۔ ایک منٹ جی، گومن صاحب کا مائک کھولیں۔ سر کورم کے میں نشاندہی کورم پورا کرے۔ اوکے جی، کاؤنٹ بی میڈ، کاؤنٹ بی میڈ۔ غزے کے رہنے والوں کو اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، وہاں آباد کر دو۔ ٹرمپ صاحب، آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی آزاد قوم کے بارے میں، اس کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد قوم کو دوسرے ملکوں میں مہاجر بنانے کا آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ آپ کا کٹھ پتلی 15 مہینے فلسطینیوں کا قتل عام کر کے انسانی جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر صرف 2-3 شہروں میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں قتل ہونے والوں کے پاداش میں صدام حسین کو لٹکایا جا سکتا ہے، تو اس پاداش میں جہاں نیتن یاہو کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے تھی، آج امریکہ فلسطینیوں کے خون پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب دنیا میں یہودی دربدر ہو گئے اور جرمنوں کے ہاتھوں پٹ گئے، تو اس زمانے میں لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ ان دربدر شدہ یہودیوں کو جگہ دینا، ان کو اثر نو بسانا، یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی ذمہ داری قرار دے کر صرف فلسطین کی سرزمین کو اس کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟
तमाम मुल्कों से कहा गया कि जहां जहां पर कोई यहूदी बसता है अपने मुल्क में उनके लिए जगह दो। क्यों किसी मुल्क ने उनको जगह नहीं दी और सबको इकट्ठा करके फलस्तीन की सरजमीन में लाया गया? करारदाद में कहा गया है कि किसी शहरी को, किसी यहूदी को जबरन कहीं आबाद नहीं किया जाएगा। करारदाद में कहा गया है कि किसी सरजमीन पर सरजमीन वालों से पूछे बगैर जबरन उनको आबाद नहीं किया जा सकता। यहूदियों को भी जबरन लाकर आबाद किया गया, फलस्तीनियों से भी जबरन जमीन ली गई और वहां उनको आबाद किया गया। करारदाद में कहा गया है कि फलस्तीन ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, यहां मजीद किसी को आबाद करने की गुंजाइश नहीं है। उसके बावजूद ओवर पॉपुलेटेड एरिया पर उनको आबाद किया गया। करारदाद में कहा गया है कि फलस्तीन माशी लिहाज से इंतहाई कमजोर है, इस पर मजीद बोझ न डाला जाए। उस माशी लिहाज से कमजोर तरीन मुल्क पर इतने बड़े यहूदी आबादी का बोझ ला दिया गया और आज तक ये सिर्फ बोझ ही नहीं बल्कि उनकी पीठ में घोंपा हुआ छुरा है, खंजर है, जो आज भी हमारे जिस्म को छू रहा है और हमारे जिस्म से लहू बह रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम क्या दोबारा नौवादियात की तरफ जा रहे हैं? मुझे माफ फरमाइए, ये हाउस है मेरा, मैं इससे बात करता हूं। जो कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा, 40 साल से हो रहा है। और अगर 40 साल का आप अरसा न गिने तो गुज़श्ता 20 साल से एक ही इलाके पर जंग फोकस की गई है। इतनी तवील जंग एक ही इलाके पर फोकस होना, ये जुग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदही करता है। और ये वो मंतका है, पहाड़ों का ये वो मंतका है जो आलमी जंग का सबब बना है। यहां रूस आया, अमेरिका ने पूरी कुव्वत इस्तेमाल की दरियाए आम से पीछे भगाने के लिए। यहां अमेरिका आया, यहां की मादनियात पर कब्जा करने के लिए, अफगानों ने लड़कर उनको निकाल दिया। आज चाइना की भी ख्वाहिश है कि मेरी रसाई अफगानिस्तान तक हो सके। अफगानिस्तान और हमारे फाटा के इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में दो किस्म के मादनियात हैं। एक वो मादनियात जिसके साथ आम लोगों की मईशत का ताल्लुक है, गैस, कोयला, तेल, चांदी, सोना, कॉपर वगैरह वगैरह। कुछ वो पत्थर भी हैं कि जो खला में जाने वाले रॉकेटों और मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जो 450 की हीट पर भी तहलील नहीं होते। इससे उल्टा जाए तो इतनी ही सख्त सर्दी में भी वो मुंजमद नहीं होते। इसकी जरूरत अमेरिका को भी है, इसकी जरूरत चाइना को भी है, इसकी जरूरत रशिया को भी है। वो इन इलाकों तक पहुंचना चाहते हैं और हमारे उन वसाइल पर कि जिनके साथ बड़ी कुव्वतों के वफादात वाबस्ता हैं, जो उनकी मिसाइलों में इस्तेमाल होंगे, जो उनके रॉकेटों में इस्तेमाल होंगे, और उसके लिए वो तगदो कर रहे हैं कि किस तरह इस इलाके पर अपना हाथ मजबूत कर लें। कोई अजब नहीं कि अगर ट्रंप गजा के बारे में ये बात कह सकता है तो उसके एजेंडे पर यह भी हो कि कबायली इलाके पर हम कब्जा कर लें, यहाँ का निज़ाम अपने हाथ में ले लें, पाकिस्तान का अमल दखल हम ख़त्म कर दें। वहाँ वैसे भी उसकी रीढ़ कमज़ोर हो चुकी है और फिर उसके बाद वो यहीं से हमारे मादनियात को भी ले जाए, अफगानिस्तान को भी डील करे, तेहरान को भी डील करे, इंडिया को भी करे, पाकिस्तान को भी करे और चाइना को भी करे। ये जुग्राफियाई तब्दीलियाँ, इनके खतरात मैं महसूस कर रहा हूँ। खुदा मेरे वहम को झूठा साबित कर, लेकिन खुदा के लिए सुनो तो सही इस बात को, कुछ अहमियत तो दी जानी चाहिए। हमारे कबायली इलाकों में जंगें हो रही हैं, कोरम एजेंसी में जंगें हो रही हैं। क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां की सूरत हाल को बेहतर बनाए? एक तरफ आपने उनको जम कर दिया, जम करने के बाद बजाय इसके कि वहां खुशहाली आनी चाहिए थी, वहां बाग बहार होना चाहिए था, वहां सब्ज बाग होने चाहिए थी, वहां दूध की नहरें और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी, उल्टा हमारे इलाके भी ख्वार हो गए। वहां का अमन भी हमसे छिन गया, वहां की खुशियां भी हमसे छिन गई। ये होते हैं फैसले। इंतजाम का ये विजन,
इस विजन के साथ आपके साथ लोगों ने ताउन किया था, इस विजन के साथ आपके पार्लियामेंट के मेंबरों ने आपका साथ दिया था। क्या कर रहे हैं आप मुल्क के साथ? क्या आप इस रियासत के साथ करना चाहते हैं? किधर आप मुल्क को ले जाना चाहते हैं? बखुदा मुझे अपने ऊपर एतमाद है, अगर हमारा ऐवान, हुकूमत हो या अपोजिशन, संजीदा होकर खुद एतमादी के साथ अपने वतन अजीज के लिए खुद सोचे, फैसले करे, विजन मौजूद है, दलील मौजूद है, राय मौजूद है, तहकीक मौजूद है, हम इस मुल्क को बेहतर चला सकते हैं। देखिए क्यों हम इस हद तक गिर चुके हैं कि हम एक कलम उठाते हैं तो उसके लिए भी एक इशारे के मोहताज होते हैं। तो किसी लम्हे हमारे ज़मीर पर कुछ गुजरती है या नहीं गुजरती? तो ये वो सारी सूरत हाल है। हजरत मैं आपको बताऊं, जनाब स्पीकर, हाउस के नोटिस में आ जानी चाहिए। 1 साल के इस पूरे अरसे में बाजवड़, जहां से हम अपनी पार्टी के 90 लाश उठा चुके हैं, 90 जनाजे बेअक्वा। रोजाना हमारे 2-2, 3-3 जनाजे उठ रहे हैं हर एजेंसी से, और लड़ाइयां भी जारी हैं। हर जरगा मेरे पास आया है, बाजवड़ का जरगा मेरे पास आया है, मोहम्मद का जरगा मेरे पास आया है, अफरीदियों का जरगा मेरे पास आया है, शनवारियों का जरगा मेरे पास आया है, औरंगजेब का जरगा मेरे पास आया है, कुरम का जरगा मेरे पास आया है, वजीरों का जरगा मेरे पास आया है, दावर का जरगा मेरे पास आया है, मसूदों का जरगा मेरे पास आया है। एक एजेंसी ऐसी नहीं रही कि जिनके लोग जरगा लेकर मेरे घर ना आए हों। एक ही भीख मांग रहे हैं कि हमें अमन दो। आप बताएं मैं कहां से अमन दूं? पार्लियामेंट की नहीं सुन रहा कोई, तो मेरे एक आदमी की क्या सुनेगा? फजल रहमान की कौन सुनेगा? अभी पेशावर में तमाम कबाइल का जरगा हुआ, एक ही बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें अमन दो। हम दरबदर हो चुके हैं। 2010 से वो लोग मुहाजिर हैं, अपने मुल्क के अंदर मुहाजिर हैं, भीख मांग रहे हैं। वो कबाइल जो अपनी रिवायात रखते हैं, जिनकी खवातीन घरों से बाहर नहीं निकलती, आज वो गली कूचों में भीख मांगने पर मजबूर हो गई हैं। तुम्हें अपने पश्तूनों के और उनकी रिवायात के, उनकी इज्जत का कोई लिहाज नहीं है? तुम्हें अपने बलोचों की इज्जत का कोई लिहाज नहीं है? हवाले करो सही लोगों के, ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं। हम मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, हम पूरी तरह ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मामला पार्लियामेंट तय करेगी, ये सियासतदान तय करेंगे, ये फैसला करेंगे क्या करना है, किधर जाना है। एतमाद करो अपने मुल्क के लोगों पर, सिविलियंस पर, सिविलियन क़ियादत के ऊपर हमें एतमाद करना चाहिए। मुल्क के माहौल को हमें तब्दील करना चाहिए, वरना फिर यही होगा कि आए रोज़ पार्लियामान में भी हंगामा राई, न कोई मुश्तरका सोच, न किसी मसले पर संजीदा डिबेट, न कोई मामला फहमी, न हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। जनाब स्पीकर, अज़राह करम, मेरी गुफ्तगू को अपने बोझ न समझिए, बल्कि ज़रा संजीदगी से इन सारे चीज़ों को लीजिए। मैं दर्द दिल से बातें कर रहा हूँ और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा हाफिज़। ये एक रेजोल्यूशन मूव करना चाह रहे थे अमीर मुकाम साहब, फिर मैं असद कैसर साहब को टाइम देना चाह रहा हूँ। आप बात करेंगे? मैं